Ladies and gentlemen, good day and welcome to the Q4 and full year FY26 earnings conference call hosted by Shakti Pumps India Limited. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during this conference, please signal an operator by pressing star then zero on your touchtone phone. Please note that this conference is being recorded. I now hand the conference over to Mr. Rohit Anand from Ernst & Young LLP. Thank you, and over to you, Mr. Anand. Good afternoon, everyone. Before we proceed, let me remind you that the discussion may contain forward-looking statements that may involve known or unknown risks, uncertainties, and other factors. It must be viewed in conjunction with our business risks that could cause future results, performance, or achievements to differ significantly from what is expressed or implied by such forward-looking statements. To take us forward through the financial results and development and to answer your question today, we have the senior management of Shakti Pumps India Limited, represented by Mr. Dinesh Patidar, Chairman, Mr. Ramesh Patidar, Managing Director, Mr. Ramakrishna Satluri, Chief Executive Officer, Shakti Energy Solutions Limited, Mr. Dinesh Patel, Chief Financial Officer, and Mr. Ravi Patidar, Company Secretary and Compliance Officer. We will start the call with a brief overview of the past quarter and full year FY26 by Mr. Ramesh Patidar, our Managing Director. I will now hand over the call to Mr. Ramesh Patidar. So, over to you, sir. Thanks, Rohit. Good afternoon, everyone, and thank you for joining us on Shakti Pumps Q4 FY26 earnings calls. FY26 marked a strategic transition year for the company, one where we deliberately balanced growth with financial discipline. Our priority throughout the year was clear: to strengthen the balance sheet, improve cash conversion, and build a resilient operating platform capable of delivering sustainable long-term growth, while continuing to reinforce our leadership in the solar pumping segment. The company delivered its highest ever consolidated revenue of rupees 2,698 crore in FY26, with Q4 FY26 revenue at rupees 858 crore, also the highest in the single quarter. This performance was backed by a strong execution ramp-up, with solar pump installation increasing 20% year-on-year to 86,086 units in FY26, and a robust 51% year-on-year growth in Q4 FY26 to 28,345 installations. The strong exit run rate in the fourth quarter underlines our improved execution capabilities and sustained traction across key states. During the year, we navigated a challenging operating environment. EBITDA margin faced pressure from lower realizations under the Margil-Tara scheme, a sharp increase in raw material prices, and elevated logistic and freight costs, impacted by ongoing global geopolitical disruptions. Importantly, these are external and cyclical headwinds, not structural issues. Despite these challenges, we sustained EBITDA margin at approximately 16% for FY26, reinforcing the robustness of our operating model and our ability to protect profitability while maintaining execution momentum. Crucially, we have not pursued growth at the cost of balance sheet strength. FY26 focused on disciplined execution and capital stewardship, and this is now clearly reflected in our financials. Receivables were reduced by over rupees 420 crores during the fourth quarter, reduced from 197 crore as of December 31st, 2025 to rupees 1,276 crore as of March 31st, 2026, representing a 77-day improvement in receivable days. This was achieved even as Q4 marked the highest quarterly revenue in the company's history, underscoring our strong focus on working capital efficiency. As a result, the company generated healthy cash flows from operations of rupees 124 crore in FY26, significantly strengthening balance sheet quality and
liquidity. The improvement in cash conversion is key pillar of our long-term strategy and position us well to fund growth sustainably without undue leverage. Our order book stands at approximately rupees 1,500 crore as of May 7, 2026, providing strong revenue visibility for the coming periods. We remain constructive on demand prospects supported by anticipated policy momentum under KUSUM 2.0, continued opportunities under the Maghaltala scheme, and sustained demand across other state-level solar initiatives. On the export front, FY26 saw a stable performance. During the Q4, exports were temporarily affected due to the delays in order placement amid geopolitical tensions in the Middle East. Encouragingly, we have witnessed improving traction through our dealer and distributor network, which we expect to remain a steady contributor going forward. Meanwhile, the growth in our case-based domestic business has enhanced revenue diversification and further supported working capital efficiency. Beyond our core solar pumping business, we are also looking into related areas like solar rooftop system and electric vehicle parts, which are aligned with India's clean energy transition and offer attractive medium to long-term opportunities. Shakti Pumps remain committed to growing responsibly, protecting the balance sheet, preserving cash flows, and investing for the long term. We are confident that the fundamentals of the business remain strong, and the steps taken in FY26 ensure that we emerge from current challenges better positioned, more resilient, and firmly focused on sustainable value creation. We believe these actions reinforce our long-standing commitment to all stakeholders and underscore the Shakti Pumps is here to stay with long-term growth firmly intact. I now request Mr. Ramakrishna Sataluru to share key developments and the outlook of our solar rooftop business. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much, Mr. Ramesh Patidar. Good afternoon, everybody. Just to take it from where he has left, the strong fundamentals and the excellent product quality has really helped the rooftop business to start off very well. We started very well, and we realized that the heart of this solution belongs to the inverter, and therefore we placed a lot of inverters in the market to check the feedback. Given that the strong Shakti brand acceptance is pretty good, the feedback also for this product is very good. We have partners and we have customers who come back to us and said that whenever there is a Shakti inverter that has been installed, we are having about roughly 10% better generation, which augurs very well for this business. We've already set the channel up in most of the places. That's a continuous process, but we have some very good distributors set across the country. We are looking forward to some very good numbers in this financial year. This year really looks very good for us. Thank you very much. And now I open the floor for your questions, please. Thank you. Thank you very much. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and 1 on their touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and 2. Participants are requested to please use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will now wait for a moment while the question queue assembles. Our first question comes from the line of Prakhar Tibrewal from Choice Institutional Equities. Please go ahead. Yeah. Hello, sir. Congratulations for a record-breaking revenue number. My question is regarding the margins. So do we see a way back to the peak margins of 24% we saw in H1 FY26 and back in FY25, or are we expected to remain at the current levels? हाँ प्रकार मार्जिन के लिए तो सभी लोग काम कर रहे हैं और हम भी उसी के लिए काम कर रहे हैं. इसमें ये मैं बोलना चाहूंगा कि थोड़ा मार्जिन जो आप देख रहे हो उसमें इफेक्ट रॉ मटेरियल की प्राइसिंग का है, जो कि हमारे कंट्रोल में भी नहीं है, और रॉ मटेरियल प्राइस कॉपर, स्टेनलेस स्टील और सिलिकॉन शीट्स में बहुत ज्यादा वेरिएशन भी आया है, डॉलर में भी इंक्रीज आया है. इसलिए
मार्जिन वाले मैटर में यस, हम हमेशा सोचते हैं कि हम बेटर मार्जिन के लिए काम करते भी हैं, लेकिन रॉ मटेरियल के प्रेशर की वजह से हम अपना मार्जिन नहीं बना पाए। बट हमारा प्रोडक्ट डे बाय डे हम उसमें इम्प्रूव कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, और आगे भी हम उस पर काम कर रहे हैं। हमने एक्सपोर्ट में बहुत अच्छा काम किया है, हमने देश में बहुत अच्छा काम किया है। तो यस, मार्जिन ऑलवेज डिपेंड ऑन द रॉ मटेरियल प्राइसिंग, और उसमें दिनेश पटेल भी इस बारे में कुछ हमारे सीईओ को बोलना चाहते हैं। सर एक्चुअली ये एक टेम्परेरी इम्पैक्ट है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वॉर एंड अदर थिंग। मैं हमको लगता है कि ये थोड़ी देर बाद जो है कुछ दिनों में ये वापस स्मूथन होगा और ये मार्जिन हमारे वापस कुछ इम्प्रूव होंगे। Okay, so do we see it coming back to like 20 again? अभी कमेंट करना थोड़ा अर्ली होगा। वंस द थिंग्स गेट बैक देन आई विल एक बार वॉर सेटल हो जाए फिर उसके बाद बात करेंगे। अपडेट यू इन Q1। तो सर इसमें मार्जिन अलग की वजह से जो लोअर रियलाइजेशन है उसका कितना इम्पैक्ट है अप्रोक्सीमेटली? 3 to 4% का इम्पैक्ट सर वहाँ पर रहा है। वो हमने अर्लियर कॉल में भी बोला था कि जो रिसेंट हमारे पास टेंडर आए हैं उसमें 3 to 4% का इम्पैक्ट रहा है। ओके, और अभी फॉलो अप आगे फॉर FY27 कौन सी स्टेट्स में से हम सबसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑर्डर्स? अभी हमारे पास 1500 करोड़ के ऑर्डर हैं, जो ऑर्डर बुक है हमारी, और हमको लगता है कुसुम सी, कल भी प्राइम मिनिस्टर ने एक स्पीच में डीजल पंप को सोलर पंप से रिप्लेस करने की बात की है। तो कुसुम जो है, कुसुम 2.0 जो है वो अच्छे तरीके से आने वाली है, और जब तक आ भी जाएगी, जब तक हम ये अपने 2 क्वार्टर्स को इधर देखेंगे, जब तक कुसुम भी आने की संभावना पूरे तरीके से है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू महाराज, थैंक यू। Thank you. Our next question is from the line of Ashish Upangalawar from InvestQ PMS. Please go ahead. सर थोड़ा डिटेल में समझ में आ सकता है कि टेंडरिंग की प्राइसेस क्यों कम हुई, कॉम्पिटिटिव सिनेरियो क्या हुआ है, और दूसरा अभी सिचुएशन ऑन स्टेट गवर्नमेंट से जो पेमेंट आने थे थोड़ा बहुत तो ठीक हुआ है, बट स्टिल अभी रिसीवेबल्स भी ज़्यादा ही है। सो वो, और दूसरा कुसुम 2 का शायद से डिले हो गया है, गवर्नमेंट का कुछ कॉन्टेक्ट है उसके अंदर। सो उस पर थोड़ा क्लैरिटी दे पाएंगे कि ओवरऑल मतलब गवर्नमेंट का थिंकिंग क्या है, और ये टेंडर के प्राइसेस क्यों कम हो रहे, कॉम्पिटिशन क्या है, और वर्किंग कैपिटल बेसिकली 3 चीज़ों पे आप प्लीज। सर एक्चुअली कैसा है सर, इसको आप अगर Q3 से कंपेयर करेंगे ना तो हमने काफी इसमें इम्प्रूव किया है। जो हमारे कमिटमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही गए हैं हम लोग, और ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो 800 करोड़ की टॉप लाइन करने के बाद क्वार्टर में हमने 1200 करोड़ की कन्वेयर जो है रिसीव किया है। तो रिसीवेबल साइड में तो काफी इंप्रूवमेंट है, इससे बैलेंस शीट स्ट्रेंथ भी हुआ है। और हमने बोला भी था कि जैसे ही यहाँ पे हमारा रिसीवेबल टाइमली कलेक्ट होगा तो हम यहाँ पे महाराष्ट्र में अपना एग्जीक्यूशन बढ़ाएंगे, तो हमने वो किया भी है। इसी कारण से क्वार्टर थोड़ा अच्छा हुआ है। दूसरा बात करेंगे जो रिमेनिंग आज 1200 करोड़ का जो रिसीवेबल है उसमें से आप देखेंगे तो करीब 900 जो है नॉट ड्यू है। तो अभी उसमें RMS और ये सब आने के बाद में वो पैसा भी हमको आ जाएगा, क्योंकि अब फंड की अवेलेबिलिटी बराबर से है सभी स्टेट में, हमको उसमें कोई इशू नहीं दिखता है, इसलिए हमने अपना एजुकेशन बढ़ाया एज पर कमिटेड। ओके, नहीं नॉट ड्यू का मतलब है सर वो कुछ टाइम जाता है बिफोर विच यू कैन रेज द रिसीवेबल, ऐसा कुछ है ना आफ्टर इंस्टॉलेशन? एज पर टेंडर टर्म्स कैसा रहता है कि आपको इंस्टॉलेशन होने के बाद 7 डेज का RMS लेना रहता है, और 10% पैसे के लिए 90 डेज का RMS लेना रहता है। तो ये जब तक नहीं होगा, जब तक ये पैसा ड्यू ही नहीं होता है कि आप रिकवर कर सकें। तो मतलब सर ये रिसेंट लगे हुए पंप है, ऐसा बोल रहा हूँ मैं आपको। हाँ, मतलब 100 दिन का पैसा मिनिमम ब्लॉक रहेगा, मतलब रिसीवेबल में काउंट। ये ऑलवेज हमारे हिस्टोरिकल रहा है कि 120 to 150 डेज के आसपास के हमारे रिसीवेबल्स रहेंगे। अच्छा, ओके। और सर वो रियलाइजेशन पे कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी शायद से बढ़ गई है मार्केट में, जो टेंडरिंग में वगैरह, सो वो थोड़ा उस पर कुछ बता पाएंगे? इसमें क्या है कि जरूर हमारे लोग, जो हमारे दोस्त लोग हैं वो बड़े हैं नंबर्स में, लेकिन उसके कारण थोड़ी प्राइस भी इशू में आती है। लेकिन सबसे जरूरी बात ये होती है कि जैसे अभी 25,000 पंप के लिए महाराष्ट्र का पोर्टल खुला, और महाराष्ट्र का पोर्टल 25,000 पंप का खुला और 25 मिनट में फुल हो गया। मतलब डिमांड हमारी है मार्केट में। प्राइस तो ठीक है, आगे पीछे करेक्शन आएगा और आते भी रहता है, लेकिन मार्केट में डिमांड होनी चाहिए। आज अगर
किसानों की तरफ से 25 मिनट में पोर्टल फुल करता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शक्ति की ब्रांडिंग नंबर 1 जो लीडरशिप हम बोलते हैं वो प्रूवन है ऑलरेडी। तो हमें आने वाले समय में हमारी कंपनी में हमारे इन्वेस्टर्स को ये हम कॉन्फिडेंस के साथ बताना चाहेंगे कि ग्रोथ हमारी निश्चित है और हम आगे बढ़ रहे हैं। सर वो कुछ L1 का क्राइटेरिया है ना अभी कि भाई मिनिमम प्राइस को मैच करना पड़ेगा, तो वहाँ हम लोग फर्स्ट नहीं जाएंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से? ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, ये आगे पीछे चलती रहती है। लेकिन जैसे L1 का जो क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया में भी अभी तक तो बिजनेस करते ही आए हैं। आज जो बिजनेस किया है, पिछले साल जो बिजनेस किया है, उसके पहले जो बिजनेस किया है, सब L1 कैटेगरी में उसी टर्म्स एंड कंडीशन में किया है। आई होप कि आने वाला टेंडर कंडीशन अच्छा हो और आगे से हम अच्छा बिजनेस कर पाए, क्योंकि अच्छे पंप देना हमारी जवाबदारी है। लेकिन मार्जिन आधे हो जाते हैं तो थोड़ी चिंता होती है शेयर होल्डर्स। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। मार्जिन के बारे में आपने देखा होगा कि हमने हरियाणा में एक ऑर्डर छोड़ा जिसमें हमको मार्जिन नहीं था, तो वो ऑर्डर हमने छोड़ दिया। अब बैलेंस शीट को स्ट्रेंथ करने के लिए आपने देखा कि हमने पिछले जो महाराष्ट्र में पिछले क्वार्टर में बताया था कि हमने 200-250 करोड़ का ऑर्डर छोड़ा। क्यों उसको डिले किया? क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि उनकी वो पेमेंट की कंडीशन हमको नहीं मिल पा रही थी, क्लैरिटी अभी मिल गई तो 1200 करोड़ कर दिया। 1200 करोड़ पेमेंट मिल गया तो 800 करोड़ का क्वार्टर कर दिया। तो ये सब करते रहेंगे हम, लेकिन हमारा उद्देश्य एक ही है, शक्ति पंप्स का जो इन्वेस्टर है उसका पैसा, उसकी बैलेंस शीट और उसका ROI और उसका रिजर्व सब कुछ ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर मैंने अभी ऑर्डर बुक का पोजीशन देख नहीं पाया, पीपीटी अभी स्टडी नहीं किया आपका, लेकिन अभी क्या सिचुएशन है, कितना क्या हो सकता है नेक्स्ट ईयर का टॉप लाइन और जिस तरह से चीजें हैं और कहाँ से ऑर्डर आएंगे? और दूसरा मैंने पूछा था कि कुसुम 2 का गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है कि डिले क्यों हो रहा है, मतलब उस पर थोड़ा क्लैरिटी चाहिए। हाँ, तो जैसा अभी आप हमारा अगर प्रेस रिलीज भी देखेंगे या इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी देखेंगे तो हमने 1500 करोड़ का ऑर्डर बुक जो है उसमें वहाँ पे डाइवर्सिफाइड ऑर्डर बुक को मेंटेन किया हुआ है, जो नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स के लिए हमारे पास अभी सफिशिएंट ऑर्डर बुक है, हम ये मानते हैं। और हम ये भी मानते हैं कि अभी जैसे लास्ट कल की बात है कि PM ने जो अनाउंसमेंट दिया है तो उसके बेसिस पे कुसुम बहुत जल्दी आएगा और उसके बेसिस पे हम अपनी ग्रोथ देख पा रहे हैं। इसीलिए सर ने आपको बोला कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो ग्रोथ है वो हम मेंटेन करेंगे और आगे भी और अच्छे नंबर्स देते रहेंगे। तो ये सब 3000 करोड़ क्रॉस करेंगे क्या हम लोग? अभी हम किसी नंबर पे आपको फिट नहीं कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि हम ग्रोथ करेंगे और अभी ये क्या है, इनिशियल स्टेज है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। Thank you. Our next question is from the line of Ankit Shah from Anand Rathi. Please go ahead. Hello, am I audible? You are audible, sir. You may proceed. Yeah, sir. तो अपना मार्जिन था पहले 25% था, अभी 10% हुआ और साथ में अपना रेवेन्यू भी ईयर इंक्रीज हुआ है, तो लेकिन ऑपरेटिंग लेवरेज एडवांटेज कितना मिला रहेगा अपने को? 2 to 3% का सर ऑपरेटिंग लीवरेज मिला है। 2 to 3%, ओके। और रॉ मटेरियल प्राइस पे कितना इम्पैक्ट हुआ है? रॉ मटेरियल प्राइस में अराउंड 6 to 7% का इम्पैक्ट है अभी तो इस क्वार्टर में। ओके, 6 to 7%, ओके, रॉ मटेरियल का इम्पैक्ट है और 3 to 4% अपना ऑपरेटिंग लेवरेज इम्पैक्ट है। और रियलाइजेशन पे कितना इम्पैक्ट है? रियलाइजेशन में 77 डेज का इम्पैक्ट है अपने उसमें, जो हमने बताया Q3 to Q4 में बात करते हैं तो 1697 से हमने 1200 पे लेके आए हैं रिसीवेबल्स, इवन दो कि हमने क्वार्टर हाईएस्ट एवर किया है। ओके ओके। और अपना रिसीवेबल अराउंड 1200 और करोड़ हो गया, राइट? तो आगे जाके कितना हो सकता है उसमें रिसीवेबल डेज में? डिपेंड करेगा आगे के एग्जीक्यूशन पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको अपडेट करते रहेंगे उसमें। ओके। और अभी कुछ गाइडेंस दे सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए टॉप लाइन के इसमें? सर ने जैसा आपको बताया कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ करते रहेंगे, नंबर्स जो है वो आपको क्वार्टरली अपडेट करते रहेंगे। ओके ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू अंकित। Thank you. Our next question comes from the line of Nikunj Banushali from Walford PMS. Please go ahead. Hi sir, thank you for the opportunity. So my first question is आप next year ये financial year के standpoint से capex के बारे में कुछ बात कर सकते हैं? So firstly FY26 में क्या capex हुआ है, कितना हुआ है, and FY27 में कैसे plan है for the solar cells और module?
सो इसमें एक्चुअली क्या है, दोनों मॉनिटरिंग रिपोर्ट हमने पब्लिश की हुई है 1 और 2 दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए। सो हमको जो लगता है कि हम Q2 ऑनवर्ड्स जो है पंप की जो कैपेसिटी है वो कंप्लीट कर चुके होंगे और वहां से हम उसको ऑपरेशनल कर चुके होंगे। इसके अलावा 0.5 गीगा की जो कैपेसिटी है वो भी हमको Q2 ऑनवर्ड्स में मिल जाएगी। जो 2.2 गीगा सोलर सेल की जो कैपेसिटी है उसको हम मार्च 28 तक देख रहे हैं। सो ये अभी हमारी साइड से अपडेट है। Okay. And in terms of pump installations, next year का क्या टारगेट रहेगा? अभी हमने लास्ट ईयर में जो किया है वो करीब 86,000 किया है और जो क्वार्टर में किया है वो अराउंड 28,000 किया है। और नेक्स्ट ईयर के लिए सर हम जैसे ये और भी जो अपडेट्स आते हैं जैसे लाइक कुसुम आना है, अभी बाकी टेंडर्स आने हैं, उसके बेसिस पे हम अपना रिवीजन करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ठीक है। वन लास्ट क्वेश्चन, तो एक्सपोर्ट्स ये साल कैसे रहेंगे बिकॉज ऑफ द वेस्ट एशिया वॉर इम्पैक्ट? तो विल करंट ईयर में भी ऑर्डर्स आगे ऑर्डर्स आ रहे हैं या कैसा सिचुएशन है? एक्सपोर्ट वाइज कुछ ग्रोथ आएगा? डेफिनेटली जो अभी करंट सिचुएशन है, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, उसका प्रॉब्लम तो एवरीवेयर है ना, और मिडिल ईस्ट में ज्यादा है ही उसका। लेकिन फिर भी हम हमारी कोशिश है कि हम जो ईयर एंड ईयर जो ग्रोथ करते हैं वो करने की पूरी कोशिश करेंगे और उस पर हम लोग काम करते रहेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। Thank you. Our next question comes from the line of Daksh Malhotra from Adriv Global. Please go ahead. हाँ जी, नमस्कार सर एंड वेरी गुड आफ्टरनून। अच्छा रहा ये क्वार्टर रिलेटिवली। हाँ जी सर। सर 2-3 क्वेश्चन थे। एक तो हमारा सोलर रूफटॉप के बारे में अभी सत्यलोदी साहब ने बताया, अब ये साल हमारा नया शुरुआत हो रहा है और अच्छा रहेगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप इसके ऊपर लाइट डाल सकें, हम क्या कर रहे हैं, हमारे इन्वर्टर्स एफिशिएंट हैं तो इससे हम कितना बड़ा मार्केट एक्सपेक्ट करते हैं। पंप्स में तो चलिए कुसुम 2 आने के बाद आप गाइडेंस देंगे, बट रूफटॉप में कोई गाइडेंस दे सकें अगर 27 के लिए, और थोड़ा मार्जिन का भी आइडिया दे सकें क्या रहेगा। अच्छा, नमस्कार जी। ये रूफटॉप का तो जैसे आप पब्लिक डोमेन में तो डिटेल्स नहीं है, पीएम सूर्यघर के पोर्टल में मतलब काफी तेजी से वो मार्केट बढ़ ही रहा है। तो जैसा मैंने पहले ही कहा था कि इस पूरे सॉल्यूशन में ये जो इन्वर्टर है ये सबसे महत्वपूर्ण है और हम ये चाहते हैं कि जो हम जो अभी प्लेस किए हमारे इन्वर्टर, उसका हम फीडबैक लिए हैं मार्केट से और काफी अच्छा सा फीडबैक मिला है कि 10% एक्स्ट्रा जनरेशन मिल रहा है। इससे जो है हम आशा करते हैं कि जैसे वर्ड ऑफ माउथ बढ़ते जाएगा और कस्टमर्स आकर्षित होंगे शक्ति पंप्स या शक्ति एनर्जी सॉल्यूशंस के प्रति। तो ये एज यू नो ये लॉन्ग टर्म गेम है, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, सॉलिड फंडामेंटल से हम काम कर रहे हैं। But sir, would you like to give put any numbers to this for FY27? नंबर्स के लिए सर जैसा बताया ना कि अभी हम तो गीगावाट्स और whatever। हाँ जी, नंबर्स के लिए सर हम आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर ही अपडेट कर पाएंगे क्योंकि अभी ये एक्चुअली मैच्योर नहीं हो पाया, ये बिजनेस अभी चल रहा है और हम अपने पैनल्स आने के बाद में इसको और बड़ा देख पा रहे हैं। अभी हम चैनल पार्टनर्स बना रहे हैं और मार्जिन वाइज हम ऑलरेडी गाइडलाइन दे चुके हैं कि इसमें हम करीब करीब एबिटा लेवल पे 15% देख रहे हैं। नोटेड सर, ठीक है सर। इसी के साथ में हमारा एक और लाइन है ईवी मोटर एंड कंट्रोलर का, जो हमने काफी साल से उसमें शुरू किया हुआ है। केपेक्स में भी हमने उसमें मेरा ख्याल 114 करोड़ में 70 करोड़ के करीब लगाया है। आर वी गेटिंग एनी ब्रेक थ्रूज? लास्ट कॉल में पाटीदार साहब ने कुछ जेबीएम ऑटो के साथ बताया था, बट it still shows under emerging business in the presentation। कुछ उसमें से अभी आउटपुट नहीं, रेवेन्यू नहीं जनरेट हो पा रहा है क्या? हाँ, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पिछले भी क्वार्टर में मैंने बोला था कि अगले 1 साल बाद ही हम उसमें बिजनेस देखेंगे क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर में अप्रूवल और डेवलपमेंट में समय जाता है। हमने टेक्नोलॉजी डेवलप की है, वर्ल्ड की लेटेस्ट मोटर्स हमने डेवलप की है। शक्ति पंप्स अपने आप में एक R&D कंपनी है। हमने अपने कंट्रोलर्स डिजाइन किए हैं। एक बहुत बड़ी बात है कंट्रोलर्स, ईवी के कंट्रोलर्स इंडिया में बनाना, इट्स अ बिग थिंग्स।
तो वो हमने बनाया है। तो इन सब चीजों में समय लगता है। और मोटर्स और कंट्रोलर्स और चार्जर्स तो ठीक है, छोटा काम है, लेकिन कंट्रोलर्स बहुत बड़ा काम है। और उसमें बहुत सारा टाइम भी लगाया है और बहुत सारे प्रोडक्ट पे भी हमने उस पर काम किया हुआ है। क्योंकि पावर इलेक्ट्रॉनिक में हमको चूंकि एक्सपीरियंस 8 साल का था, हम ऑलरेडी कर रहे थे हमारी VFD के काम, इसलिए हम इस कंट्रोलर को बना पाए। तो यस, आने वाले 6 और 1 साल के अंदर ही उसका रिजल्ट आएगा और अच्छा रिजल्ट आएगा। अभी हमने और भी कुछ ऑटोमोबाइल कंपनियों में उनके साथ टाई अप करके और उनकी मोटरों को टेस्टिंग और उसके बाद जो ट्रायल लेवल की, जो व्हीकल लेवल की ट्रायल होती है, वहां तक हम पहुंच चुके हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे एक अच्छी कंपनी होगी। ठीक है सर, थैंक यू फॉर आंसरिंग दीज क्वेश्चंस। विश यू द बेस्ट सर। थैंक यू वेरी मच। Thank you. Our next question comes from the line of Mahindra Jain from Way to Wealth. Please go ahead. Yeah, good afternoon, sir. Thank you for giving me that opportunity. Sir, मुझे I'm audible, sir? Yes, महेश जी बोलिए। Thank you, sir. Thank you. सर, जैसे कि ऐसा वी आर एक्सपेक्टिंग कि वर्ल्ड में बहुत बड़ा कैपेक्स आएगा इस वॉर के बाद, सो वहाँ एक्सपोर्ट में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज ओपन हो सकती है। सो क्या हम आर वी थिंकिंग ऑन दैट लाइन के कुछ न्यूक्लियर या हाइड्रोजन के अंदर भी वी कैन एंटर लाइक इन फ्यूचर, या कुछ ऐसा हाई एंड प्रोडक्ट्स के बारे में जो लो टर्न और हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स, वैल्यूएडेड प्रोडक्ट का कुछ उस पर आप लाइट दे सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। आप देखिए कि ये जो अभी वर्ल्ड में सिचुएशन हुई है, इसका फायदा शक्ति पंप्स को होने वाला है, भविष्य में बिल्कुल होगा। क्योंकि अभी हम सोलर एनर्जी, कल भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमको डायरेक्शन दिए हैं कि वर्ल्ड में जहाँ पर डीजल पंप चल रहे हैं, वहाँ डीजल पंपों को अब अवेलेबिलिटी नहीं है। जैसे अफ्रीका में देखें, बहुत सारा काम अभी भी वहाँ पे डीजल पंपों में होता था, तो वहाँ अब डीजल पहुँचना मुश्किल हो रहा है, रेट भी मुश्किल हो रहे हैं। इसलिए वो बिजनेस भी हमारे लिए खुलेगा। और हम R&D कंपनी होने के नाते हमने हर कंट्री के हिसाब से ऑलरेडी प्रोडक्ट डेवलप करके डिस्ट्रीब्यूटर डेवलप कर लिए हैं। दुनिया की 130 कंट्री में ऑलरेडी हम एक्सपोर्ट करके अपने आप को प्रूफ कर चुके हैं। प्लेटफॉर्म रेडी है। अब धीरे धीरे जैसे आप देख रहे हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटर की ग्रोथ हो रही है। एक्सपोर्ट इज ए टफ बिजनेस, लेकिन हाँ, अभी हमारे देश ने भी कुछ एग्रीमेंट किए हैं। जैसे अभी वियतनाम में एक एग्रीमेंट रिसेंट हुआ है, और भी बहुत सारे एग्रीमेंट हुए, यूरोप में हुए। अब हम यूरोप में पिछले 10 सालों से कोशिश कर रहे थे वहाँ पे डेवलप करने की, लेकिन बहुत छोटा सा हिस्सा ले पाते थे, क्योंकि वहाँ कस्टम ड्यूटी और दूसरी चीजों के कारण हम लोग परेशान थे। तो अब हमको लगता है कि आने वाले समय में हम यूरोप में भी अच्छा एक्सपोर्ट करेंगे और दुनिया की और दूसरी कंट्रियों में भी अच्छा एक्सपोर्ट करेंगे। और जो आज हम कर रहे हैं उसमें भी हम बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। जो बिजनेस आप देख रहे हो एक्सपोर्ट का, जो हमको बिजनेस मिला है, उसमें डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस में हमने ग्रोथ की है। सर, न्यूक्लियर साइड में कोई प्लानिंग है? नहीं, हम सिर्फ सोलर पंप समझते हैं, सोलर इन्वर्टर समझते हैं। इसके अलावा हमको कुछ और आता नहीं है। तो सर, अंदाज 2027 में 15,000 करोड़ का मार्केट हो, जैसे कि बता रहे कि सोलर का पंप का रहेगा, तो सर अपना मार्केट शेयर अंदाज क्या है सोलर में? व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग? हम लीडर रहेंगे, उसके लिए कोशिश जारी है, इसीलिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हमने किया है। ओके सर, धन्यवाद सर। थैंक यू मैन साहब, थैंक यू। Thank you. Ladies and gentlemen, to ask a question, you may please press star and 1. Our next question is from the line of Johan Kinwasra from Asian Broking. Please go ahead. हेलो। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हाँ सर, एक्चुअली सर मेरे को जानना था कि सर ये क्वार्टर आपके अपने टैक्स रेट इतने हाई क्यों आया सर, 42% अप्रोक्सीमेटली? एक्चुअली इसमें कुछ इम्पैक्ट्स आए हैं, जैसे इसमें जो वारंटी प्रोविजंस का है, कुछ डिविडेंड टैक्स का है, कुछ कॉर्पोरेट CSR का है। तो ये जो एडिशन हुए हैं उसमें ड्यू टू ईयर एंड में सभी कंप्लीट करना रहता है, तो उसकी वजह से थोड़ा स्लाइटली वो है, क्योंकि एक्चुअली टोटल प्रॉफिट ही कम है उसमें आप देखेंगे, तो इस वजह से आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर इम्पैक्ट लग रहा है। बट आप ईयर ऑन ईयर पे देखेंगे तो ऑलवेज 27% अप्रोक्स वो पूरा बैठता है। ओके सर, थैंक यू सर।
Thank you. Our next question is from the line of Suvankar Malik from Sanghai Family Office. Please go ahead. Hello, sir. Am I audible? Malik, yes. Yes, sir. सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जो कुसुम 2.0 जो थोड़ा सा लेट हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से आने में, तो ये कब तक आ सकता है? मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर या फिर सेकंड हाफ ऑफ द ईयर? अभी जो कल अनाउंसमेंट हुआ है पीएम सर की साइड से, उससे हमको लगता है कि ये Q1 एंड तक आना चाहिए और Q2 ऑनवर्ड्स हमको ऑर्डर सिस्टम मिलना चाहिए। ओके सर। अच्छा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो हम लोग का जो महाराष्ट्र वाला प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे थे, उसमें गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ड्यू जो है वो थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट हो रहा था, पूरा पेमेंट नहीं हो रहा था, कुछ प्रॉब्लम हो रहा था इशू। क्या वो प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो गया है? हाँ जी, वो प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो चुका है, इसलिए हमने अपने एग्जीक्यूशन भी बढ़ाया है। दिसंबर में वो प्रॉब्लम था जिस वजह से हमने एग्जीक्यूशन कम किया था। अभी हमको 1200 करोड़ करीब मिल भी चुके हैं, आप देख रहे होंगे हमारी बैलेंस शीट इसी स्ट्रांग भी हुई है। ओके सर। मतलब थर्ड क्वेश्चन सर, आई थिंक लास्ट Q3 या फिर Q2 में आपका कुछ कमेंट था कि यूपी में एक स्कीम आ रहा है सोलर पंप का, सर उस स्कीम का कुछ अपडेट? यूपी में? यस, यूपी या फिर एमपी में आपका सेकंड क्वार्टर में कमेंट है। एमपी में था, एमपी में चल रहा है, स्लो चल रहा है। हमारा स्टेट है, थोड़ा स्लो काम चल रहा है, लेकिन चल रहा है। ओके सर, ओके, मैं क्यू में आ रहा हूँ। Thank you. The next question is from the line of Rahul Gupta from Evergrowth Capital. Please go ahead. हेलो। हाँ राहुल जी बोलिए। हाँ सर, एक्चुअली जो आपका ऑर्डर बुक है 1500 करोड़ का, तो उसमें मैंने देखा महाराष्ट्र का हमारे पास 524 करोड़ का है और उसमें हमारा मार्जिन बहुत ज्यादा कम है। तो हम मतलब ये जो क्वार्टर आने वाला है Q1 में, तो उसको कैसे एग्जीक्यूट करने वाले हैं और हमारा मार्जिन क्या रहेगा नेक्स्ट क्वार्टर? मार्जिन हमको लगता है कि इम्प्रूव होगा, बिकॉज जो रॉ मटेरियल की प्राइस है अभी जो इन्फ्लेटेड है मेटल की प्राइस, वो सारी अभी हमको लगता है थोड़ा होगा और उस वजह से हमको जो 6 to 7% इम्पैक्ट आया है वो वापस हम कहीं वापस उस जगह पे जाएंगे और जो मार्जिन है वो मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि ये डाइवर्सिफाइड ऑर्डर बुक है। आप देख रहे हैं 1500 में से केवल 500 ही जो है महाराष्ट्र का, रिमेनिंग जो है अदर स्टेट्स के, तो वहाँ पे हमको एक पॉजिटिविटी है। हाँ सर, मैं वही पूछ रहा था कि हम पहले महाराष्ट्र की तरफ से ऑर्डर बुक कंप्लीट करेंगे या फिर मतलब कंबाइन ही रखेंगे? कंबाइंड ही रखेंगे सर। ओके ओके। और सर अपना मार्जिन इम्प्रूव कितना होगा? मतलब अभी जैसे हमारा 10% के आसपास है तो अभी कितना इम्प्रूव होगा फिर? हमको लग रहा है कि इसमें इम्प्रूवमेंट आएंगे, क्योंकि अभी ये वार की सिचुएशन टेम्परेरी है और ये आगे चल के ठीक होगा तो इन्फ्लेटेड मेटल की प्राइस जो वापस अपनी उस पे आएंगे, तो हमको लग रहा है कि उसमें इम्पैक्ट आएगा। बट ये हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर ही आपको अपडेट कर पाएंगे, क्योंकि अभी तो सेम सिचुएशन है। और सर एक्सपोर्ट मार्जिन कितना है? एक्सपोर्ट मार्जिन आई थिंक डबल है ना? एक्सपोर्ट मार्जिन में अराउंड 10% प्लस रहता है एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक मार्केट। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you. Our next question is from the line of Jeet Javeri from Vaya Financial Technologies. Please go ahead. तो नमस्कार सर, मुझे जानना है कि अपना जो ऑर्डर बुक है 1500 करोड़ का, उसके ऊपर हम किस टाइप का मार्जिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इसमें अलग अलग मार्जिन है सर, और मार्जिन के लिए मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि वी विल अपडेट यू इन द Q1. So we once execute, then we'll update you, because the operational efficiency is the second matter and raw material price dependency is the one matter. और मार्जिन में मेरा ऐसा मानना है कि रॉ मटेरियल की प्राइस जो है ना, हमारी रॉ मटेरियल अभी स्टेनलेस स्टील है, कॉपर है और जो सिलिकॉन शीट्स है हमारी, इस पे बहुत ज्यादा प्राइसिंग अभी ऊपर नीचे हो रही है, तो कुछ बोलना मुश्किल है। मुझे जरूर ऐसा लगता है कि आने वाला समय हमारी ये जो प्राइसिंग है इसमें नीचे आएगा, क्योंकि स्टेनलेस स्टील की प्राइस और कॉपर की प्राइस ये कहीं भी नहीं रही इन सालों में इतनी स्पीड से। ये खाली युद्ध के कारण हुआ है, और तो जरूर हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। जैसे ही ये थोड़ी प्राइसिंग हमको लगता है जरूर ठीक होगी और आगे मार्जिन भी इम्प्रूव होंगे। ठीक है सर, तो इसमें जो रॉ मटेरियल प्राइसेस है पास ऑन हम लोग कितना कर पाएंगे आगे जाके? और मेरा दूसरा क्वेश्चन था कि ये जो ऑर्डर बुक है 1500 करोड़ का, हम कितने 2 क्वार्टर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फुलफिल कर देंगे? हाँ, हम ये मान के चल रहे हैं कि नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में हम ये एग्जीक्यूट कर देंगे। दूसरा जो आपने बोला मार्जिन साइड में, तो मार्जिन साइड में अभी हमारा जो सोलर
पैनल वाला प्लांट है वो भी स्टार्ट हो जाएगा Q1 ऑनवर्ड्स, तो वहां से भी हमको कुछ मार्जिन प्लस होते दिखता है। दूसरा R&D हम करते रहते हैं, तो रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू अपना जो है मार्जिन बनाते हैं। तीसरा अभी एक स्केल हो चुका है हमारे पास में, तो हम वेंडर से भी नेगोशिएट कर रहे हैं प्राइसिंग के लिए, तो वहाँ पे भी हमको कुछ मार्जिन में प्लस होते दिख रहा है। शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू। Thank you. Our next question is from the line of Bhavya Shah from Walford Fund Management. Please go ahead. गुड आफ्टरनून सर। मेरा क्वेश्चन ये BESS सॉल्यूशन के बारे में है। मतलब हम लोग काफी लोगों से मिलते हैं तो ये समझ में आ रहा है कि कुछ लोग काफी R&D पे काम कर रहे हैं ऑन बैटरी मैनेजमेंट। तो जैसे कि आप सोलर सेल पे काफी काम कर रहे हो, तो व्हाट इज योर व्यू ऑन बैटरी मैनेजमेंट और उसका कितना फास्ट इंटीग्रेशन होगा सोलर पंप और रूफटॉप सोलर साइड, ये जानना है आपसे। हाँ, जैसा कि हमने बताया कि हम पावर इलेक्ट्रॉनिक में बहुत कुछ काम कर रहे हैं। जैसे हमने कंट्रोलर पे काम किया है और हमने इन्वर्टर पे काम किया है, हमने चार्जर पे काम किया है। तो BMS भी जरूरी है, क्योंकि जब तक हम चार्जर की टेक्नोलॉजी में जब काम करते हैं तो BMS पे भी इंडिया में लोग कुछ काम कर रहे हैं, जो बैटरी में बनाने वाले लोग हैं वो काम कर रहे हैं। लेकिन हमको वो उसमें हमारा उसमें फोकस नहीं है, क्योंकि हमारा बैटरी बनाने का काम नहीं है। हम तो BMS ऑपरेटर से उसका डाटा लेके हम उसको चार्ज करने का एल्गोरिथम हमारे सिस्टम में लिखते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you. Our next question is from the line of Kamlesh Bagmar from Lotus Asset Managers. Please go ahead. नमस्कार सर। सर एक क्वेश्चन था, क्योंकि ये हमारा ऑर्डर बुक 6 महीने का है, तो सर इतना तो हमको विजिबिलिटी होगा कि, क्योंकि सर हमने इन्वेंट्री भी रखा होगा रॉ मटेरियल का, तो ये मार्जिन सर अगर ये जो रॉ मटेरियल प्राइसेस है कॉपर और ये जो सिल्वर कनेक्ट और ये, तो इस हिसाब से रहे तो सर तो मार्जिन ये ऑर्डर बुक के लिए तो 11% के करीब ही रहेगा। और जो हम बिडिंग कर रहे हैं नए ऑर्डर्स या जो नए टेंडर आ रहे हैं, तो उसके अंदर किस हिसाब से हम प्राइसिंग पकड़ रहे हैं सर कि ये रॉ मटेरियल प्राइसेस हैं, तो वो फिर हम इसके अंदर फैक्टरिंग कर रहे हैं कि 20%? क्योंकि सर ओवर द ईयर्स अगर हम देखें, हमको बेनिफिट तभी होता है जब रॉ मटेरियल प्राइसेस नीचे जाती हैं। और अगर रॉ मटेरियल की यही ट्रेजेक्ट्री रहे तो किस हिसाब से हमारे मार्जिन रहेंगे, और आगे आने वाले जो प्रोजेक्ट हम या टेंडर हम ले रहे हैं उसके अंदर हम क्या प्राइसिंग पकड़ के कर रहे हैं काम। क्योंकि सर हम पिछले यानी 1 साल पहले हमको बेनिफिट हुआ क्योंकि रॉ मटेरियल बहुत नीचे गया, अब रॉ मटेरियल ऊपर की तरफ है तो हमको इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि जो ग्रॉस मार्जिन हम करीब करीब 30% बना रहे थे वो आज हमारा करीबन 20-22% पे आ गया है। तो ये एक सर समझने का था कि हम आगे आने वाले, ये तो हो गया सर कि ये 6 महीने की ऑर्डर बुक में जो हिसाब से अभी रॉ मटेरियल्स हैं, लगता नहीं है कि हमारा मार्जिन जो हम पहले प्रोजेक्ट कर रहे थे वो आ पाएगा, ऐसा लग रहा है सर। क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस तो लग नहीं रहा कि नीचे आएंगे, क्योंकि रुपी भी ऐसे ही इसी लेवल पे रहना है। अगर एज्यूम करें कि ये प्राइसेस रहे रॉ मटेरियल पे, तो क्या मार्जिन हम रहेंगे ये इस ऑर्डर बुक पे, और आगे आने वाले ऑर्डर्स में हम क्या मार्जिन फैक्टरिंग करके हम बिडिंग कर रहे हैं, ये दोनों आपसे जानना था सर। कमलेश भाई, इसमें कैसा है कि जैसे मैंने आपको पहले भी अपडेट किया कि मार्जिन अगर आप बोलेंगे एज ऑन डेट पे बात करेंगे तो हाँ, एज ऑन डेट पे जो हमने अभी आपको दिए हैं मार्जिन लगभग सेम लेवल पे, पर इसमें हमने कई काम अभी स्टार्ट कर दिए हैं। जैसे सर ने बताया कि रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, हमारे पास R&D की बढ़िया टीम है, वो है। दूसरा हमने जो स्केल हुआ है हमारा 800-850 करोड़ का 1 क्वार्टर का, तो उसके हिसाब से हमने वेंडर के साथ नेगोशिएशन स्टार्ट किए हैं। तीसरा हमारा खुद का पैनल का अभी जो प्लांट आ जाएगा तो उसके बाद हमको कुछ वहाँ से मार्जिन इंप्रूवमेंट दिखते हैं। और रॉ मटेरियल की प्राइस जो आप देख रहे हैं ये जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वार है, तो ये हमको ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल है। आगे चल के इसमें रिडक्शन आएंगे और रिडक्शन आने के बाद में हमारे मार्जिन वापस से इंटेक होना चालू होंगे। तो अभी हम बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट तो नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में वो प्राइसेस हमारे पास आज की डेट में नहीं है, बट हाँ इन फ्यूचर में हमको दिखता है कि ये वापस से सुधन होंगी। और आगे टेंडर के बारे में आपने बताया कि टेंडर में क्या प्राइस कोट करने वाले हो, तो भाई साहब ये बात इस कॉल पे तो नहीं की जा सकती कि टेंडर में हम कौन से कॉल और कौन से रेट डालने वाले हैं, तो इसको जरा हमारे पास छोड़िए, आगे हम आपको जरूर अगले क्वार्टर में बताएंगे। थैंक यू। नहीं सर, वो नहीं पूछ रहा मैं प्राइसिंग क्या रहेंगे, मैं ये पूछ रहा हूँ कि हम क्या मार्जिन फैक्टरिंग करके चलते हैं, क्योंकि सर मार्जिन एक 24% वाला 10% पे आ जाता है, तो सर इसमें तो यही समझ आ रहा है कि हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है उस हिसाब से। क्योंकि अगर हम ये भी देखें
आई नो कि सर वॉर किसी को पता नहीं होता है या ये सब चीजें होती है, लेकिन सर जो हम मार्जिन की गाइडेंस दे रहे थे 24% की, वो सेकेंड हाफ में हमारी गिर के हो गया 11% मार्जिन सर। तो थोड़ा, क्योंकि आपके हाथ में है कि ये प्राइसिंग वाला पार्ट, बट एक तो गाइड भी वो नहीं हो पा रहा है कि क्या हिसाब से हमारे मार्जिन रहेंगे। उस हिसाब से मैं पूछ रहा था कि सर अब जब हम कभी भी कोई ऑर्डर लेते हैं तो कितना कंटिजेंसी पकड़ के चलते हैं और कितना हमारा मार्जिन इतना मिनिमम होना चाहिए, उस हिसाब से करते हैं, वो जानना था सर। करेक्ट सर। एक्चुअली कैसा है, हम डाइवर्सिफाइड सेक्टर में, तो आपको पता है कि एक्सपोर्ट में तो हम पास ऑन कर पाते हैं प्राइस को, है ना। इसके अलावा जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है उसमें भी हम प्राइस को पास ऑन कर पाते हैं। बट आप जो टेंडरिंग बिजनेस है या रेट कॉन्ट्रैक्ट वाला जो बिजनेस है उसमें स्टेट ऑन स्टेट में प्राइस डिफर करता है, ये आपको भी पता है, और स्टेट ऑन स्टेट में हमारा कॉम्पिटिशन भी डिफरेंट है। सो हम अभी एक्चुअली एग्जीक्यूशन जो है महाराष्ट्र में ज्यादा हुआ, उसकी प्राइस ऑलरेडी कम थी, आपको भी पता है, सबको पता है, तो इस वजह से मार्जिन तो इम्प्रूव नहीं हो पाए इस क्वार्टर में। बट आगे हमको लगता है कि उस समय जब हमारे पास ऑर्डर्स आएंगे और बाकी बिजनेस भी ग्रो करेंगे तो उस लाइन पर मार्जिन भी इम्प्रूवमेंट होगी, और उसके लिए कैसे होंगे इम्प्रूवमेंट वो भी हम आपको पहले बता चुके हैं। तो इस लाइन पे हमको थोड़ा सा काम करने दीजिए, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। और सर लास्टली ये कि जो हम ऑर्डर बुक देते हैं एकदम सर, जैसे पिछले क्वार्टर में लास्ट ईयर हम देखते हैं Q3 में, अब तो क्वार्टर एंड की ऑर्डर बुक देते हैं, तो सर क्या होता है ना, आप मिड एकदम अभी 10 महीने या आपने 7 या 8 महीने का दिया, कंपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि इस क्वार्टर में कितना ये हुआ है और कितना इंक्रीमेंटल ऑर्डर आया है और कितना एग्जीक्यूट हुआ है। और सर सेकेंडली आप ऑर्डर बुक जो देते हैं विद GST देते हैं, एक ये सर विदाउट GST का दीजिए, क्योंकि हम जब आप रेवेन्यू रिपोर्ट करते हैं वो रेवेन्यू होता है विदाउट GST का, तो कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल होता है कि कितना इंक्रीमेंटल ऑर्डर आया और कितना एग्जीक्यूट किया, एक उस हिसाब से। ठीक है सर, आपका पॉइंट नोट कर लिया है, तो नेक्स्ट टाइम से हम कंप्लायंस ऑफिसर को बोलेंगे कि वो दोनों प्राइसिंग वहाँ पे मेंटेन करके चलें जितने भी ऑर्डर थे। दूसरा आप देखेंगे तो हमने हर ऑर्डर जो भी हमें मिला है वो हमने विद इन 24 आवर्स में जो अपनी टाइमलाइन है उसको देने की पूरी कोशिश की है स्टॉक एक्सचेंज को, तो सारे ऑर्डर्स अपडेटेड होते हैं। दूसरा क्या है कि जो आप बोल रहे कि एज ऑन डेट, तो हमको एज ऑन डेट पे अपनी जो विजिबिलिटी है वो दिखाना जरूरी होती है, इसलिए कि भाई आज तक के ऑर्डर हमारे पास इतने हैं, क्योंकि क्वार्टर के बाद में भी कुछ अपडेट्स होते हैं जिसको हमको इनकॉर्पोरेट करना होता है। आज आपसे कॉल कर रहे हैं, हम अगर ये 1 अप्रैल पे करते तो आपको 31 मार्च पे कर पाते, पर उसके बाद 1-1.5 महीना जो हो जाता है तो उसके अपडेट्स को भी हमको इनकॉर्पोरेट करके उसमें एज ऑन करना पड़ता है, और हमने प्रॉपर डिस्क्लोजर दिया हुआ है कि जो भी ऑर्डर बुक है वो एज ऑन डेट है। बाकी आपको क्वार्टर के नंबर्स तो मैं हर बार बता ही रहा हूँ ना। Our next question comes from the line of Himanshu Shivhare from MB Investment. Please go ahead. गुड आफ्टरनून। मैं ये जानना चाह रहा था, हमारे जो कुसुम 1 के पेमेंट्स हैं आप वो परसेंटेज में बता पाएंगे कितने बचे हैं और कितने अभी और पेंडिंग हैं? नहीं, इसके लिए आप सेपरेट में मैं आपको EY को बोलूंगा तो आपको अलग से डिटेल दे देंगे, जो डिटेल आपको चाहिए। सेंसिटिव आइडिया भी चल जाएगा मुझे? नहीं, वो बताना कॉल मुश्किल होगा। ओके। Thank you. Our next question comes from Vamika Mandania from Anand Rathi. Please go ahead. हेलो सर, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर सेट ऑफ नंबर्स। मेरे को 2 क्वेश्चंस थे। आपने लास्ट क्वार्टर मेंशन किया था कि आप साउथ में एक्सपैंड करोगे और अपने ऑर्डर बुक का विजिबिलिटी में भी आपको कर्नाटका में ज़्यादा दिख रहा है, तो मे बी आप उस पर कुछ अपना कमेंट दे सकते हैं? हाँ, साउथ में हमने काम स्टार्ट किया है, हम वहाँ पे अच्छे फिगर पे पहुंचे हैं, और आने वाले समय में भी हम साउथ में और आगे से हमारा काम आगे और बढ़ाएंगे। एक रफ अगर नंबर या फिगर मिल सकता है कि कितना % आउट ऑफ द टोटल ऑर्डर बुक? ऑर्डर बुक आ जाए तो फिर हम आपको बिल्कुल 24 आवर्स में इन्फॉर्म करेंगे। ओके, एंड माय सेकंड क्वेश्चन वाज कि आपने मेंशन किया था कि 0.5 गीगावाट का मॉड्यूल प्लांट कमीशन हो जाएगा Q1 27 तक, तो उसका कोई अपडेट अभी अगर मिल सकता है तो? हाँ, वो अभी काम अच्छे प्रोग्रेस में है और बढ़िया चल रहा है, और हमको लग रहा है Q1 के एंड तक वो फैसिलिटी हमको मिल जानी चाहिए, इसलिए हमने बताया भी कि उससे हमारे मार्जिन इंप्रूवमेंट होंगे। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। Thank you.
Our next question is from the line of Prakhar Tibrewal from Choice Institutional Equities. Please go ahead. हाय सर, एक क्वेश्चन रह गया था मेरा. मुझे अपन हमारे क्वार्टरली रेवेन्यू में हम ऑर्डर्स कितने दिन में बुक करते हैं वो समझना था. तो मैंने यहाँ पर 11 दिसंबर से हमें जितने ऑर्डर मिले हैं ना, मैंने वो मैप किए हुए हैं. तो वो करीब हमारे 11 दिसंबर 2025 से लेके 12 जनवरी तक हमें करीब 1750 करोड़ के ऑर्डर मिले थे. उसमें से हमने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया 850 करोड़ का करीब फॉर Q4. तो इसमें से हमने ये कितने ऑर्डर अभी बचे हैं, या इसमें से कुछ ऑर्डर ऐसे थे जो हमने Q3 में ही कर दिए थे फुलफिल. तो मुझे समझना था ताकि मैं आगे के क्वार्टर्स का प्रॉपरली फोरकास्ट कर सकूं रेवेन्यूज. सर एक्चुअली कैसा है, इसमें ऑर्डर जो आप देख पा रहे हैं, एक बार आप कैलकुलेशन भेजिएगा तो मैं उसमें आपको प्रॉपरली गाइड कर पाऊंगा. सेकंड थिंग जो है, हमने जो ऑर्डर लास्ट क्वार्टर में दी थी और अभी जो क्वार्टर दी थी वो आपको पता ही कि 1500 करोड़ एज ऑन डेट पे पेंडिंग है. हमने जो क्वार्टर में एग्जीक्यूशन किया वो अराउंड 700 का एग्जीक्यूशन किया है. और पूरे ईयर में आप बात करेंगे तो करीब 2080 करोड़ का हमने पूरे ईयर में एग्जीक्यूशन किया सोलर में. रिमेनिंग एग्जीक्यूशन जो हुआ है वो ओईएम में, ईवी सेल्स में या डोमेस्टिक में, एक्सपोर्ट में हुआ है. तो मेरा जो सोलर सेगमेंट है, ईपीसी सेगमेंट है, उसमें मैंने 704 करोड़ का इस क्वार्टर में किया है और पूरे ईयर में बात करें तो 2080 करोड़ का किया है. अब आपको अगर इसमें भी कुछ जो आप बोल रहे हैं कि आपको कुछ कंफ्यूजन है या समवेयर आपको डिटेल चाहिए तो आप मुझे एक सेपरेटली मेल कर दीजिए, मुझे और ईवाई टीम को, हम आपको सेपरेटली उसमें रिप्लाई कर देंगे. वो ठीक है सर. मुझे बस समझना था कि हम मतलब कितने दिन में अप्रोक्सीमेटली, जैसे आप हमेशा टाइमलाइन भी बताते हैं जब आप रिलीज करते हैं ऑर्डर, तब वो टाइमलाइन 60 डेज या 120 डेज या 90 डेज का रहता है. तो उसमें आप हर ऑर्डर के साथ में हम लोग टाइमलाइन वहाँ पे मेंशन करते हैं. हाँ, एग्जैक्टली आपने मेंशन किया हुआ है. तो मैं वही पूछ रहा था कि ये समझिए 120 दिन का हमने ऑर्डर एक्सेप्ट किया है, लेकिन तो वो हम अप्रोक्सीमेटली कितने दिन में कर पाते हैं? तो एक्चुअली क्या है उसमें सर, थोड़ा सा एक मैं आपको माइनर करेक्शन है जो हमने अपने प्रेस रिलीज में भी दिया है कि कुसुम के जो ऑर्डर्स थे उसमें हमको एग्जीक्यूशन के लिए थोड़ा सा वक्त और दिया गया है, इसलिए उस टाइमलाइन से ये टाइमलाइन मैच नहीं हो पाएगी. इसलिए आप प्रॉपरली जो कंपनी डिस्क्लोज कर रही है ऑर्डर बुक्स उस पर ही कॉन्सेंट्रेट करें और जो नंबर्स हम दे रहे हैं उसी पे कॉन्सेंट्रेट करें तो बेटर होगा आपके एनालिसिस के लिए. अच्छा, नहीं ये तो हमारे जो आते हैं ऑर्डर के बाद 24 आवर्स में आप जो डिस्क्लोज करते हैं ये उसमें से ही लिया हुआ है सर. तो ये उसके नंबर्स हैं. तो मैं वही जानना चाह रहा था कि जैसे आज हमें कोई ऑर्डर मिला और उसका टाइमलाइन है 90 दिन का, तो वो हम क्या अभी Q1 FY27 में बुक कर देंगे या वो Q2 तक चला जाएगा? देखिए, मैं आपको वही बताने की वापस से कोशिश करता हूँ कि जो 90 to 120 डेज है उसमें तो हम करते ही करते हैं, पर कहीं कहीं पे हमको एक्सटेंशन मिले हुए हैं. जैसे पीएम कुसुम का आप देखेंगे तो एग्जीक्यूशन के लिए एक्सटेंशन ऑलरेडी गवर्नमेंट ने सभी प्लेयर्स को प्रोवाइड किया हुआ है, तो वो एक्सटेंशन के कारण से टाइमलाइन आगे बढ़ती है. राइट. अच्छा, तो वो हम फिर जो टाइमलाइन बढ़ी है उसका यूज कर लेते हैं. करेक्ट. ओके, समझ गया. थैंक यू सर. Thank you. Ladies and gentlemen, due to time constraints, we will take that as our last question. I would now like to hand the conference over to Mr. Dinesh Patidar, Chairman, for closing comments. Over to you, sir. थैंक यू दोस्तों, आप सब लोग आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. अगर आपको मैंने सारे क्वेश्चन के जवाब ठीक से दिए हैं, अगर आपको कोई और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो तो आप हमारी EY टीम के थ्रू आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए यहाँ पर हैं. आप हमको क्वेश्चन भेजिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद इस कॉल में आने के लिए. थैंक यू वेरी मच. Thank you. On behalf of Shakti Pumps India Limited, that concludes this conference. Thank you all for joining us. You may now disconnect your lines.